न्यू कमर्स हैं, शिल्पा शेट्टी हैं और काजोल है, बोथ आर न्यूली। काजोल। अब ये जो बंदा है, पर्सनालिटी जो भी है, ये नॉट शाहरुख खान, ही इज एक्टिंग, सो ही इज एक्टिंग अ पर्सनालिटी, सो दैट पर्सन इज सिमरिंग विथ रिवेंज। मतलब बचपन में उसके पिताजी ने, शिल्पा शेट्टी के पिताजी ने, दोनों बहनें हैं ये, तो इनके पिताजी ने इनके पिताजी के साथ कुछ कर दिया है बहुत गलत, तो अब इस बंदे को बदला लेना है। तो पूरा जो चाइल्डहुड इस बंदे का है, इट इज like to take revenge. So you can imagine what kind of life this person has been through. Are you getting a point? The whole life Yes, sir. this person has been only thinking of taking revenge. What kind of personality will he become? Constrained. If I may use the word constipated. Emotionally, I will say. Huh? Deprived. Do you really want to, take revenge so much that you don't care the value of the life that you have? Is it that important? Getting a point? तो वो क्या करता है बंदा, अब वो दोनों लड़कियों से ही एक में वो ब्राउन आंखें कर लेता है, एक में वो ब्लैक आंखें कर लेता है, एंड देन व्हाट ही डज इज ही pataws both the sisters separately. And in one of the scenes, which is a very heart-wrenching scene, he throws Shilpa Shetty as an actor, I mean, छत से उठा के उसको फेंक देता है। Cold-blooded murder से भी worse थी। Are you getting my point, guys? And it is shown. And the worst part is that this movie has been accepted by the people. Matlab, it became a hit. So that shows the seriousness of the film. Are you getting my point, guys? Yes, sir. Where it is going? What kind of personalities are we creating around us? So in case, definitely people would have seen this movie, young boys must have seen the movie, it must have impacted their mind, it is okay, and that is why you would have heard, so आप कई सारे ऐसे experiences देखेंगे लाइफ में जहाँ पे बंदे ने उठा के एंड लड़की के ऊपर जो है वो एसिड फेंक दिया, सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. मर्डर कर दिया, स्टॉक किया उसको। So in a way we are promoting this, no, subconsciously, right or wrong? Right, sir. So as someone was telling, best way to take a revenge is move on. Do not hold any kind of grudge. अब मैं बता रहा हूँ, you are limiting yourself. Someone was just saying, I'm forgetting the name, कि it reduces the potential. Word से associate किया था किसी ने, नाम Yes, भूल sir. गया। I said that. हाँ, Himalayan Prabhakar. Yes. Himalayan. He said कि it reduces the potential. Definitely it does. आप क्यों किसी के प्रति रिवेंज रख के अपना पोटेंशियल खराब कर, जाने दो। एक बार क्या हुआ कि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन, सो गांधी जी दे डिड सम आंदोलन, आई थिंक क्विट इंडिया मूवमेंट इन मुंबई का जो मैदान है ना, तो वहां पे गांधी जी ने कहा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए एंड ऑल दैट। सो चर्चिल मेड अ रिमार्क कि इफ Britishers will leave India, India will go to chaos, and who will handle this, and these people will fight and die, and something लंबा सा। तो गांधी जी ने उसके रिस्पॉन्स में बोला था, बड़ा फेमस डायलॉग हो गया वो, कि लीव इंडिया टू गॉड। समझ आया? Similarly, in case you are holding any kind of revenge with anyone for some reasons, XYZ, however brutal, however unjustified, justified, whatever coming to your mind, leave them to God. अपने जहन से इस भावना को निकाल फेंकिए दोस्तों। आप देखिए इसको कितना, हाउ मच विल इट हेल्प यू इन हाउ मेनी वेज। Getting a point? And holding the revenge will drain you potentially. Getting a point? आप Yes, हमारी sir. पुरानी मूवीज देखेंगे तो उसमें तो पूरी सदियां जो है मिथुन जो है बड़ा ही हुआ है बदला लेने के लिए। क्या आप उस तरह के युवक बनना चाहते हैं?
नो नहीं बनता। एक मेरा स्टूडेंट है, अभी रिकमेंड हुआ है ओटीए के लिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। इसके पहले वो ही वाज इन सीआरपीएफ, ही इज स्टिल सर्विंग इन सीआरपीएफ एज इंस्पेक्टर एंड वेटिंग फॉर द मेरिट। दिस मैन हैड सो मच टू क्राई अबाउट, इतनी सारी दिल में दर्द थे, बट इस बंदे ने कहा कि मेरे को रिवेंज लेना है ऐसे, सक्सेस। तुम लोगों को मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, वो आर यू देयर वाली, इट इज द रिवेंज। तुम्हें कोई बीच राह में छोड़ के चला गया, ड्रॉप्ड यू, डिच्ड यू विदाउट एनी लेफ्ट राइट, कुछ सोचा नहीं, ड्रॉप्ड यू, नो आई कांट कंटिन्यू विद यू, आई डोंट थिंक वी कैन मूव ऑन, आई थिंक वी शुड मूव ऑन, सच काइंड ऑफ, डोंट होल्ड एनी ग्रज, ठीक है जाने दो। और अगर तुम्हारे जहन में इतना ही है ना, तो उसको बैकफुट पे लाओ। कैसे? भाई, by becoming much more successful, use it as an energy to move ahead rather than as a speed breaker to। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? कनेक्ट कर रहे हो मेरी बात से? नहीं कर रहे हो? उसको पॉजिटिव एनर्जी Yes. में चैनलाइज करो। आप हमारी स्टोरीज देखोगे, महाभारत क्या है? फुल ऑफ रिवेंज ही तो है। महाभारत में क्या है बताओ? रिवेंज ही है, हर कोई रिवेंज ले रहा है। जब यस दुर्योधन के सर। पास जब दुर्योधन के पास कृष्ण आए थे, सबने पढ़ी है रामाधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, यस सर। क्या था? वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्न बाधा को चूम चूम, सह आगे घाम, धूप घाम पानी पत्थर धूप पानी। घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, आगे तो कुछ तो था। सबको उस मार्ग पर लाने को और भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए पांडवों का? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा दोस्तों? एम ऑडिबल? एम ऑडिबल यस गाइस? सर। या Yes, sir. तो भगवान ने क्या कहा कि तुम बस एक 5 गांव दे दो, हस्तिनापुर भी रखो, इंद्रप्रस्थ भी रखो। पर दुर्योधन वह भी दे न सका। दुर्योधन ने कहा ना। दुर्योधन को ये नहीं था कि मुझे आधा हस्तिनापुर चाहिए कि इंद्रप्रस्थ चाहिए कि क्या चाहिए। दुर्योधन को क्या चाहिए था दोस्तों? रिवेंज। रिवेंज। पूरे महाभारत में मैं तुम लोग को एक बुक रिकमेंड की थी मैंने, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, याद है? यस सर। पैलेस ऑफ इल्यूजन जब पढ़ोगे तो देखोगे पूरा रिवेंज पे ही तो है। द्रौपदी को रिवेंज लेना था। नहीं, द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, तो दुर्योधन ने रिवेंज में क्या किया? उनको जुए में हरा के एंड देन ही मिसबिहेव्ड विद द्रौपदी। अब द्रौपदी को रिवेंज लेना है कि मैं तो अपने केश तभी धोऊंगी जब मैं इसको दुर्योधन क्या दुशासन के रक्त से धोऊंगी, तभी मैं केश बांधूंगी। ये क्या मेंटालिटी है? समझ रहे हो? किसी के खून से मैं जब बाल धोऊंगी, पढ़ा है तुम लोगों ने महाभारत में? Yes, sir. फिर भीम यस को एक यस रिवेंज सर। लेना है कि मैं दुर्योधन की दुशासन की बाजू उखाड़ूंगा। एवरीवन। द्रुपद को एक रिवेंज लेना है द्रोणाचार्य से, तो द्रुपद उसके लिए क्या करते हैं? द्रुपद यज्ञ करते हैं। यज्ञ से उनको एक बेटा प्राप्त होता है, धृष्टद्युम्न, और एक एडिशनल में बेटी मिल जाती है, द्रौपदी। सो एवरीवन इज टेकिंग रिवेंज। दैट्स हाउ आवर मूवीज वर। आप 80 के 90 की दशक की पिक्चरें देखोगे तो लड़का पैदा ही हो रहा है, बचपन से वो बचपन में कोई घाव है जो उसको बार बार दिखाई देता है, तो बाप के साथ कुछ हो गया, तो माँ के साथ कुछ हो गया, तो बहन के साथ कुछ हो गया। परंतु दैट इज नॉट हाउ द लाइफ शुड बी। लाइफ इज मोर अबाउट मूविंग ऑन, प्रोग्रेसिंग, डूइंग बेटर, improving and forgiving this nonsenses। Getting a point? सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरी बातों से, या मैं ऐसे ही बोले यस जा रहा हूँ सर। बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। Anyone any point on this? So मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, कई शब्दों का कई अर्थात उसके कई मतलब निकलते हैं। ऐसे शब्दों को जहन से निकाल,
समझ में आया?